शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग जबर छतर तख्त के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नजर ज्ञान दे सागर समुची मनुखता दे सांझा आत्मक भंडार साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो महान सतगुरु अठवें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहब जी दे पावन पवित्र इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु महान सतगुरु मेरी पीरी दे मालक अकाल तख्त साहब दी सिरजना करन वाले किला लोहगढ़ साहब दी उसारी करन वाले कीरतपुर साहब वसाउण वाले ऐसे महान बेअंत कारज करन वाले 52 राजियां दी बंद खलासी कराउण वाले बंदी छोड़ दाते ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਯੋਧਿਆ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿਹਵਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਐਸਾ ਸੀ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ। ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ 112 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਿਹਵਲਤਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਤੜਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਢ ਖਾਲਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੁੱਢ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡ ਖਾਲਸਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਸੀ। ਉਹ ਤੜਪ ਸੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁ ਤਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਰਖਾਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀੜ ਸੀ, ਦਰਦ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੜਪ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਗਏ, ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਬਲੇ। ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲੋ। ਪਰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਬਚਨ ਪੜੋ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲੀ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਵਰਤੈ ਤਹ ਲੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਾਓ। ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋੜਾ ਕਰ ਚ ਜੋੜੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਝ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਚੜੀ ਸਾਰ ਜੋ ਜਾਚੰਦੀ ਹੇਕੜੋ। ਜਾਚੜੀ ਮੰਗ, ਜਾਚਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਾਚੜੀ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਚੰਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਕਾ ਚੰਗਾ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਮੰਗਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਜੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ। ਜਾਚੰਦੀ ਹੇਕੜੋ, ਹੇਕੜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
एक वाहिगुरु जी नूं मंग, ये सब तो चंगी मंग है। गाली बिया विकार, गल्लां गाली गल्लां बिया दूजियां विकार बेकार ने। नानक धनी ने होनियां। नानक जी कहंदे धनी मालक वाहिगुरु जी तो बिना होर जिन्नी भी गल्लां ने वो बेकार ने। पर करिए कि गल्ली असी चंगे हां, आचारी बुरियां। गल्लां करके असी चंगे बनदे हां, आचार साडे जीवन दी राहो रीति वो बेकार है। ते साहब कहंदे जिन्नी भी तू दुनियावी गल्लां करदा है वो बेकार ने एक मालक वाहिगुरु जी तो बिना। ते मालक वाहिगुरु जी नूं मंगेगा कौन? जो गुरु नाल जुड़ेगा। महला पंजवां, नेह जे विधा मन। इत्थे नेह नेहो नेह प्यार, कहंदे प्यार ने जे विधा विन दिता मन नूं। जिसदा मन प्रभु प्यार दे विच विन्या गया, शब्द रूपी बाण तीर अंदर मन नूं विन गया। कहंदे पछाणू विरलो थियो। इस गल दी पछाण किसे विरले नूं हुंदी है कि परमात्मा वाहिगुरु जी नूं प्राप्त करना, ओदे बारे गल्लां करनियां ने, ओदा जस गाउणा, ओनू एक नूं मंगना है। हुण पछाण शब्द अपने आप विच बड़ा प्यारा है। जिथे क्या मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ऐ मन तू ते जोत स्वरूप है। ऐ बंदे ये तेरे अंदर जो आत्मा वसी हुई है, ये कोई छोटी मोटी गल नहीं है। तू कोई आम जी गल नहीं है। तेरे अंदर परमात्मा वाहिगुरु दी अंश है। तू ओदा पुत्र है, ओदी बच्ची है। तू अपने आप दी पछाण तां कर। तेरी पछाण गवाच गई है। हुण पछाण कौन गवाउंदा है? अंधेरा। ते पछाण करवांदा कौन है? चानना। ते चानने दा काम की है? पछाण करवा देना। अंधेरे दा काम की है? पछाण गवा देना। जिस बैडरूम दे विच तुसीं 25 सालां तो रह रहे हो, एक एक चीज दी पछाण है तुहानूं, पर अचानक लाइट चली जावे, चानना ना रवे, अंधेरा हो जावे, सारी पछाण गवाच जाती है। घर दे च 5-7 जी रहिंदे ने, जे पत्नी भी आ जावे ते आवाज मार के पुछना पैंदा कौन, क्योंकि पछाण नहीं। पर उसे वेले जे चानना हो जावे, लाइट आ जावे, सारी पछाण है। चानने दी गल, क्योंकि दिवाली दी रात नूं ज्यादातर दीवे बाले जांदे ने, चानना कीता जांदा है। लोग घरां दे बाहर चानना करदे ने। क्यों करदे ने? की दसना चाहुंदे ने? किसे घर दे च मौत हो जावे, बंदा बर्बाद हो जावे, घाटा पै जावे, तुसीं कदी वेख्या कि बहुता चानना कीता जांदा? नहीं। उस दिन ते जिहड़ी लाइटां घर दे विच हन, कई वारी ओह भी नहीं जगाउंदा बंदा। उदास बैठा कोई आया ते कहंदा भी चानना क्यों नहीं कीता? कहंदा हुण काहदा चानना, हुण तां जिंदगी च ही अंधेरा हो गया। साबित की होया? अंधेरा दुख दा प्रतीक है ते चानना सुख दा प्रतीक है। क्योंकि इस तो विपरीत जे किसे घर दे च विआह दा वेला है, आनंद कारज है, बच्चे ने जन्म लिया, कारोबार दे च बहुता वाधा होया है, ते लोग घर दे च ते लाइटां हन, घर दे बाहर भी लाइटां ला दिंदे ने। आपां प्रकाश गुरपुरब जद मनाउंदे हां, आ रिहा गुरु नानक देव साहब जी दा प्रकाश गुरपुरब, जिन्हां दे अंदर जज्बा है, भावना है, वो अपने घरां नूं सजा दिंदे ने, बाहर लाइटां लाउंदे ने, ताकि लोकां नूं पता लगे कि अज साडे लई वड्डा खुशी दा दिहाड़ा है। क्योंकि साडे गुरु ने अज दे दिन प्रकाश लिया सी। प्रकाश शब्द है ही चानना। जे किते इस गल नूं इउं वेखदे हां ते दुनियावी तौर ते 3 प्रकार दे चानने मुख तौर ते नजर आउंदे ने। पहला चानना है लाइटां दा ते सूरज दा। ये जरूरी है क्योंकि पछाण कराउंदा बंदे नूं हर गल दी, हर वस्तु दी। पर यह चानना होवे ते जे अखां दा चानना नहीं है, अखां दी रोशनी नहीं है, बंदा अन्ना है, ते फिर यह चानना किसे काम दा नहीं ना। अंधे बंदे लिए यह चानना किस काम दा?
बाबा कबीर साहब जी ना एक पिंड गए ते उत्थे दे सरपंच ते होर बंदे इकट्ठे होके आ गए ते कहंदे ने भगत जी इत्थे साडे पिंड च एक जन्म तो अन्ना बंदा रहिंदा है, उन्होंने बड़ा कहंदे आ कि चानना प्रकाश है, मनदा ही नहीं, उन्होंने समझाओ किसी तरह। कहंदे लियाओ, जद सामने लियाए उन्होंने क्या सजना तू मनदा क्यों नहीं है, जद सारी दुनिया कह रही है चानना है ते है। कहंदा जी मैं नहीं मनदा, जे मैं नहीं वेख्या ते मैं क्यों मन्ना। जे तुसी मनाउणा चाहते हो ते एक काम करो कि चानने नूं मेरे कंन दे नेड़े लिया के वजाओ, ओदी आवाज सुनांगा ते मन्नांगा। कहंदे उन्होंने वजाया नहीं जा सकता। ते कबीर साहब जी कहंदे फिर हाथ च फड़ाओ, मैं महसूस करा टटोल के वेखां, जे चानना है तां मन्नांगा। कहंदे नहीं, उन्होंने हाथ च भी नहीं फड़ाया जा सकता। फिर सुंघाओ, नक दे नेड़े लियाओ, सुगंध लिया तां मन्नांगा। जद ये कुछ नहीं किया जा सकता ते वो अन्ना बंदा कहंदा मैं मनदा ही नहीं है कि चानना है। बिल्कुल इउं नास्तिक बंदे मनदे ही नहीं ने कि परमात्मा वाहिगुरू है। अज दा शब्द कह रहा है, ये सलोक कह रहा है कि कोई विरला इस गल दी पछाण करदा है। कौन पछाण करेगा? गल नूं पकड़ लेना। पहला चानना है कि सूरज दा लाइटां दा ये होवे, पर अंधा बंदा वो तो इस चानने नूं मनदा ही नहीं, ना इहदा लाभ लै सकदा है। इसका मतलब अखां दी रोशनी भी जरूरी है, चानना जरूरी है, पर ये दोनों चानने होण पर सुरत रूपी रोशनी ना होवे। सुरत गवाच गई, बंदा कोमा च चला गया, ओदे सामने भावें ओदे पुत्र बेटी नूं भी लै जाओ, पत्नी नूं लै जाओ, बाबा पछाणदा, बिटर बिटर वेखी जांदा पर पछाण नहीं, क्योंकि दोनों चानने किसे काम दे नहीं जे सुरत गवाच जावे। इसका मतलब चेतना, सुरत भी चाहिए, रोशनी भी चाहिए है। पर ये तिन्ने चानने होण तुहाडे कोल, इहदे नाल की होवेगा? गुरुद्वारे तक पुज जावांगे, वेख लांगे पालकी है, पोशाका किहो जिहा है, संगत किस तरह बैठी है, गुरुद्वारा कितना सोहना बनिया, बस इत्थे तक। ये तीन चानने सानू पछाण करा सकते हैं। इस तो अगली गल है अपने आपे दी पछाण। वो कौन करवावेगा? वो चौथा चानना जो सब तो महान चानना है, वो है ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधियारा दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लईए, वस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। अंदर दा दीवा बल जावे, ये बाहर दे दीवे संकेतक होण, प्रतीक होण खुशी दे, प्रकाश दे। जिस तरह निशान साहब बाहर लगा हुंदा, इस गल दा सम्मानित, ये संकेतक है कि अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश है। पर जे किते किते निशान साहब बाहर लगा होवे पर अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश ना होवे, ते फिर बंदा कई बारी धोखा खा जाता, निराश हो जाता है। जिहड़ा सोच के आया कि मैं गुरुद्वारे आया, ये वखरी गल है कि निशान साहब कई महान अस्थानां ते भी झुलाए जाते ने, गुरुद्वारे के रूप विच नहीं, किसी जित के संकेतक के रूप विच। पर जो बेनती करना चाह रहे हैं कि बाहर दे दीवे एक संकेतक बन जान, अंदर दा दीवा जल पवे। शब्द दीपक बरतै तह लोए, सानू समझ आ जावे, जे 100 चंदा उग वहें, सूरज चढ़े हजार, इते चानण हुंदे आ, गुरबिन घोर अंधार। फिर बंदी छोड़ दिवस बनाउणा वाकई च महान हो जाएगा। बंदी छोड़ दाते ने एवें थोड़ी 52 राजियां दी बंद खलासी करा दी। इतने शूरवीर, इतने दलेर, ऐसे महान सतगुरु 11 साल की उम्र हो गए ते पिता शहीदी दे देन, कोई भैन भरा नहीं, हुकूमत जालम है, ते उदों ऐसी ललकार देनी, ऐसी जुरत विखानी, ये गुरु हरगोबिंद साहब जी ही कर सकते सन।
एक इनकलाब लियाउणा, क्रांति लियाउणी। 11 साल की उम्र दे च गुरगद्दी दे मालक बने। मीरी पीरी दियां 2 तलवारां बद्धियां पाईयां, 2 तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी एक पीर दी, ते बचन जद कीता ना, एक राखी करे वजीर दी। गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु जी ने जो पहली ललकार दिती गुरगद्दी संभालदियां, कहा गुरु के सिखो कमजोरी एक कौमी गुनाह है, इनू बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरे सिख कमजोर नहीं होने चाहिए, मेरे सिख बलवान होने चाहिए ने। कसरतां करो, भुलो आपस विच, शस्त्र विद्या सिखो। ते अज दिन तो गुरु दरबार दी सब तो चंगी भेटा, चंगे तो चंगे घोड़े, चंगे तो चंगे शस्त्र ते नौजवान बच्चियां दी जवानी होवेगी। अपने नौजवान बच्चियां नूं गुरु दरबार वल भेजो। ते ये ऐसी ललकार सी जो गुरु अर्जन देव साहब जी ने कहा सी ना, जद शहीदी हुई सी ते सतगुरु जी दा शरीर जो है सड़िया होया, भुजया होया ते ले जाया जा रहा सी रावी दरिया वल। ते लाहौर दी संगत ते लोग दर्शन करन लई जद गलियां च खड़े सन ते छतां दे ऊपर खड़े सन, ते वेख के उन्हां दी भुब्बां निकल गईयां सन। 84 दे विच जो टायर पा पा के साड़िया गया, अग्गां लाइयां गईयां, सिखां नूं किते अग ने एक वारी परखिया। ये ते गुरु अर्जन देव साहब जी दे वेले तो परखदी आ रही है। अग दे भांबर उदों भी बाले गए सन, अग दे भांबर उदों भी जद भाई सती दास जी नूं रूह विच वलेट के साड़िया गया सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहीदी दिती, एवें थोड़ा दिती, दीवा बन गए। जद कहा सी ना 500 ब्राह्मण रोंदे कुरलाउंदे ते नाल बच्चियां औरतां सन, आनंदपुर साहब आए सन। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी अगे जद पुकार की ते साहब ने कह दिता, सतगुरु कहा बच्चियो तुसी घर ही जाओ, सीस अपना दे के सत बचावांगा मैं। हिंदू मंदिरां दे बुझ रहे दीवियां अंदर तेल खून अपने दा पावांगा मैं। पाया देश दी जड़ां अंदर लहू अपना, भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है। अज भी हिंदू मंदिरां दे बल रहे दीवियां अंदर खून तेग बहादुर दा बल रहा है। अज भी हिंदू मंदिरां दे बल रहे दीवियां अंदर खून तेग बहादुर दा बल रहा है। ये सारे मंदिरां दे च जो चानना है, ये जो गुरुद्वारियां दे च चानना है, ये गुरु तेग बहादुर साहब दीवा बने ने, भाई सती दास जी दीवा बने ने। दीवे लई की चाहिदा है? एक मिट्टी दा दीवा हुंदा है, एक वट्टी हुंदी है रूह दी, तेल पाया जांदा, अग लाई जांदी है, छोटे जे कमरे नूं चानना दिंदा है। पर इत्थे गुरु के सिख दा शरीर मिट्टी दा वो दीवा बन गया। रूह भी जालमा ने बलेट दिती वट्टी ते तेल पा के अग लाउणा चाहया, पर इत्थे तेल नहीं बलिया, गुरु के सिख दा खून बलिया, जिन्हें एक ऐसा दीवा बन के रहंदी दुनिया तक दुनिया नूं चानना देण दा काम कीता। गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे रूप विच गुरु तेग बहादुर साहब जी ने एक ऐसा दीवा बालिया जो अज तक इस देश दी पछाण नूं बचाई बैठा है, अणख गैरत नूं बचाई बैठा है। मेरी पीरी दे मालक दी गल कर रहे हां ते कहंदे गुरु अर्जन देव साहब जी नूं जद लिजाया जा रहा सी ते जद शरीर नूं वेखिया ते किसी ने पुकार के कह दिता, जालमा ने अज सच दी आवाज नूं दबा दिता है, अज तो बाद कोई सच ते पहरा नहीं देगा, कोई आवाज सच दी बुलंद नहीं करेगा। ते गुरु अर्जन देव साहब जी ने कहा सी, ये तुहाडा भुलेखा है,
मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार को कौन रोकेगा। फासलो आतशा आहन बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार को कौन रोकेगा। कहंदे मेरी आवाज नू दबाना सौखा नहीं है, ये जो हयाती दी ललकार मैं शहीदी दे के दे चलिया, इन्हू कोई दबा नहीं सकेगा। इन्हां दी जुल्म दियां दीवारां लोहे दी दीवारां तो भी मजबूत सही, मगर हयात की ललकार को कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज को रोकने वालों, मेरे हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। मेरे हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। फिर रोक भी कोई नहीं सकिया। तुहानू पता है शाहजहान बादशाह नाल 4 जंगां लड़ियां गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, चारे दियां चारे जंगां जित के जुल्म ते जालम दी जड़ पट के रख दिती सी। जहांगीर बादशाह घबराउंदा सी, गुरु हरगोबिंद साहब जी दी फौज वेख के ते दलेरी वेख के। जहांगीर बादशाह दिल्ली दे तखत तो उच्चा तखत गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अकाल तखत के रूप विच बनाया। जो दास बेनती करिया सी कि सतगुरु ने कहा नौजवान बच्चों नूं भेजो, ते सिखां ने की कीता, किसे दे 4 बच्चे ने ते उन्होंने 2 भेज दिते, किसे दे 3 ने ते 2 भेज दिते, किसे दे 2 ने ते 1 भेज दिते। जे किसी दा 1 भी सी ते उन्हें 1 भी नहीं रखिया, गुरु कोल भेज दिता। एक सिख फौज तैयार हो गई। अकाल तखत ते सच्चे फैसले होण लगे। केवल मीर राजे वांग नहीं, पीर दा पहरा रिया, गुरु दा पहरा रिया, धर्म दा पहरा रिया। पीरी की है धर्म ते मीरी की है राजनीति। एक गल नूं चंगी तरह समझ लेना। विद्वान तुलना दिंदे ने कि मीरी इहो जानो कि काया देह, ये शरीर मीरी है, ते पीरी की है आत्मा, वाहिगुरु दा अंश। एक गल याद रखियो, जद तक आत्मा इस शरीर नूं चला रही है, तद तक ये देही चल रही है। जे आत्मा उडारी मार जावे ना, ते मिट्टी दा ढेर हो जाती है, बदबू मारन लग जाएगी कुछ दिनों विच ही। ताही ते साड़िया जांदा, ताही तो दबाया जाता है। मुर्दा बंदे नूं रखिया क्यों नहीं जाता, बदबू मारेगा। आत्मा नूं उपर रख के जे शरीर नूं तोरिया जावे ते धर्म दा पहरा रहेगा। फिर ये शरीर बदबू नहीं मारेगा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत आकै दुर्गंध, वो वाली गल नहीं बनेगी। पर जे आत्मा नूं मार दिता जावे, दबा दिता जावे, ते फिर जींदियां जे भी बंदा मुर्दा हो जाता है, उहदा जमीर मर जाता है। इहो जे लोग समाज दा बड़ा नुकसान करते ने, हर पासे कौड़ा बोलते ने, गलत बोलते ने, निंदा चुगली बदबू मारते ने। कहना की चाह रहे हैं कि हमेशा धर्म पीरी उपर होवे, मीरी थले होवे। धर्म अगवाई करे राजनीति दी, ते जिथे राजा धर्मी होवेगा उथे राज बड़ा सोहना होवेगा, प्रजा बड़ी सुखी होवेगी। पर जिथे धर्म दे उत्ते राजनीति हावी हो जावे, धर्म नूं दबा दिता जावे या धर्म नूं वरतिया जावे, उथे बड़ी मुश्किल गल हो जाती है। उथे फिर राजनीति बदबू मारन लग जाती है, फिर रहना औखा हो जाता है। उदों यही हालात सन। जहांगीर दे वेले राजनीति बदबू मार रही सी, धर्म नूं केवल वरतिया जा रहा सी। जहांगीर दी सोच भी औरंगजेब वर्गी सी कि पूरे भारत वर्ष नूं इस्लाम हेठ लियाया जावे। इधर गुरु अर्जन देव साहब जी नूं शहीद भी इसे करके किया गया सी कि किते ना किते धर्म नूं ठल पै जावे, दबाया जा सके।
पर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ते फौज तैयार कर ली। किला लोहगढ़ साहब की उसारी हो गई ते जहांगीर नूं चुगलखोरां ने भड़काया। प्रथी चंद वर्गे, चंदू वर्गे, पर गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु जी का औरा, शानो शौकत ते सूरबीरता वेख के जहांगीर तक कंबन लग गया ते सलाह करके नेड़े बिठाउणा आरंभ कर दिता। एक पक्ष ना तुसी ध्यान दे के चलिया करो, कई बारी ना बिना सोचे समझे असी शोर मचा दिंदे हां। किसी धार्मिक बंदे नूं, किसी प्रबंधकां नूं जे सरकारां नाल वेख लैंदे ते उदों ही रौला पा दिंदे हो, नहीं जी इत्थे विक गए ते हो गए। ऐसा नहीं हुंदा है। विदेशां विच इंग्लैंड, अमेरिका, कैनेडा, उत्थे भी ते सिख प्रबंधक, सिख संगतां सरकारां नाल रल के चलदियां ने। जे सरकारां दे नेड़े होके गल नहीं करोगे ते फिर सिख समाज लई लै भी की सकोगे। होया सी जद वंड होई सी, उन्होंने पाकिस्तान लै लिया सी, पर फिर अद्धे हिंदुस्तान ते कब्जा उन्हां दा हो गया सी, की लै सके। जरूरी नहीं हुंदा कि हर कोई सरकारां नाल रल के ते विक गया। जे गल आपां सोचीए ते फिर गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु जहांगीर बादशाह नाल बैठे, जहांगीर बादशाह नाल घूमे फिरे, आगरे गए। गुरु हरगोबिंद साहब जी बारे भी ये गल कह दोगे? नहीं, सतगुरु समर्थ ने। गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु जी ने जहांगीर कोल बैठ के तेनों गल समझाई, तां ही चंदू नूं सजा मिली, तां ही उन्हां जल्लादां नूं सजा मिली। ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन्हां नूं सजा दित्ती जिन्हां ने गुरु अर्जन देव साहब जी नूं ततियां तवियां उत्ते बिठा के शहीद कीता सी। जहांगीर बादशाह नूं आईना विखाया, वो डर गया, कंबन लगा, बीमार पै गया। ते उदों जिहड़े नजूमीए सन उन्हां नूं चंदू ने सिखाया, होर चुगलखोरां ने, कि कोई ऐसी विਉਂਤ बनाओ, नहीं तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ते सानू सजा देणगे ते बादशाह ते झुक गया उन्हां सामने। ते इन्हां ने जहांगीर नूं पट्टी पढ़ाई कि तेरे उत्ते साड़ सत्ती आई हुई है, इस तो तू तां ही बच सकदा है जे कोई महान शख्सियत तुहाडे लई जाके किसी विशेष जगह ते जप तप करे। ते जहांगीर ते डरिया होया सी। उन्हें पुछया नजूमियां तो, नजूमी वो जिद्दां ज्योतिष हुंदे ने ना, इस टाइप दे धोखा देण वाले लोग। ते गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं इन्हां ने इशारे नाल गुरु हरगोबिंद साहब वाल इशारा किया कि उन्हां तो महान शख्सियत होर कौन हो सकती है, ते तुहाडी ते हुण मित्रता उन्हां नाल, तुसीं उन्हां नूं कहो कि ग्वालियर दे किले च जाके उत्थे तुहाडे लई कोई जप तप करन तां साड़ सती खत्म होवेगी। हुण जहांगीर ने कहा गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं, साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी जानी जान सतगुरु, क्योंकि महान कारज करना सी, बंद खलासी करानी सी, वो लोग जिहड़े नरक भोग रहे सन, गुरु तां बख्शंदा। ते सतगुरु ने मुस्कुराउंदियां जहांगीर नूं कहा, तेरे उत्ते साड़ सती नहीं आई, जिन्हां उत्ते साड़ सती आई है वो बच नहीं सकणगे। भाव की चंदू वर्गे पापी जिन्ना मर्जी जतन कर लैण बच नहीं सकणगे सजा तो। हाँ, असीं जावांगे जरूर ग्वालियर दे किले, क्योंकि कुछ कारज करने ने। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर दे किले पुजे, वेखदे की ने जिहड़े राजे उत्थे कैद सन, नरक भोग रहे सन, ते सतगुरु दे पुजदियां ही उत्थे सचखंड बन गया। कीर्तन कथा होण लग गई। हरदास जेलर सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी दे दर ते श्रद्धा रखण वाला सी, ते आप गुरु नानक रूप जद उत्थे पुज गए ते चरना दा भोरा बनिया। इत्थे लंगर तैयार होण लगा, इत्थे गुरु की देग तैयार होण लग गई।
ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਵਕਤ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਹਵਲ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਜਾਗੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲੋਧਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਇਹ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇ, ਤਰਬਕ ਕੇ ਜਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਤੜਪਦਾ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਤਰਬਕ ਕੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮਰਤਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 52 ਦੇ 52 ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ? ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰਦਾਸ ਜੇਲਰ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੇਲਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਇਤਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਚੋਲਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਦਾਸ ਜੇਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 52 ਰਾਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਦ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਗੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 4 5 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰਦਾਸ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਨਣਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ।
क्योंकि बंदे नूं पछाण हुंदी है। जे पछाण गवाच जावे ते अंधेरे दे च ठेडा वज जांदा, अपने बैडरूम दे च गोडे नूं सੱਟ वज जांदी है ते लम्मा समा बंदा दर्द सहंदा रहिंदा है। फिर अंधेरा पाप कमाउण दा जरिया भी है। छिवें काम ना पुछै जात, चानने दे च बंदा किसी दे तन उत्ते हथ पाउण तो डरदा, धन उत्ते हथ पाउण तो डरदा है, पर हनेरे दे विच तां बंदा रिश्तियां दी भी पछाण गवाच दिंदा है, किसी दे तन उत्ते भी हथ पा दिंदा है। बंदा चानने च कतल करन तो डरदा, चोरी करन तो डरदा है, पर अंधेरे दे च कतल करन तो नहीं डरदा, चोरी करन तो नहीं डरदा। पर साहब कहंदे बाहर दा चानना होवे पर जे तेरे अंदर अंधेरा है, जिहदे अंदर अज्ञानता रूपी हनेरा है, इहो जिहा बंदा तां भरे चौराहे ते कतल करन तो नहीं डरदा। सूरज चढ़िया होवे तां भी कतल कर दिंदा है, किसी दे तन इज्जत उत्ते हथ पाउण तो नहीं डरदा, चोरी करन तो नहीं डरदा, क्योंकि उन्होंने अपने आपे दी पछाण नहीं है। वो अज्ञानता रूपी अंधेरे च जी रहा है, उन्होंने इस गल दी पछाण नहीं की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए। ते साहब कहंदे फिर अंदर भी ते एक दीवा चाहिए है ना। अंदर दा दीवा की है? ये जो शब्द दी विचार तुसी सुन रहे हो, ये शब्द दीपक वरतै तह लोए, ये शब्द एक दीवा है। ये दीवा अपने आप दी पछाण करवाउंदा है। इसे करके सतगुरु जी कह रहे, निह जे विधा मन, जे अंदर निह पैदा हो गया, प्यार पैदा हो गया वाहिगुरु जी प्रति, ते उस प्यार ने मन नूं विन दिता। ते किस दे अंदर नूं विनेगा? ये शब्द रूपी तीर बाण, कहंदे जिन्हों पछाण है। पछाणू विरलो थियो, ये पछाण करन वाला कोई विरला ही होवेगा। जोड़न हारा संत नानक पाधर पधरो, वो फिर जोड़न वाला संत बन जाएगा जिन्हों अपने जीवन की पछाण हो गई। शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरान। हुण बौराना कौन है? बौराना किनू कहा जाता? बौरा पागल, कमला। ते कमले की पछाण की है? ਉਹਦੀ पछाण ही यह है कि उन्होंने किसी गल की पछाण ही नहीं है। कपड़े असी भी पाउंदे, वो भी पाउंदा, पर उन्होंने पता नहीं, वो पुट्ठे भी पा लेगा, अद्धा नग्न भी हो रहेगा। खाना असी भी खांदे, वो भी खांदा, पर उन्होंने पछाण नहीं खाना किस तरह। थल्ले धरती ते डोल के भी खांदा रहेगा। तुरदे असी भी हाँ, वो भी तुरदा है, पर उन्होंने पछाण नहीं अपने मंजिल की। जिधर मुंह उधर तुरया चला जा रहा। जिन्हों पछाण नहीं ना किसी गल की, उन्होंने लोग पागल कहते हैं, बौराना कहते हैं। ते जे सानू अपने जीवन की पछाण नहीं ना, तो शब्द कहता भी तुसी भी बौराने हो। ते सब इत्थे कह रहे ने कि जिन्हों जीवन की पछाण आ जाती है, वो गुरु, वो संत तुहानू सीधा राह विखाउंदा है। पादर का अर्थ है रस्ता, ते पधरो सीधा राह। दास ने एक दिन बेनती की सी कि अजकल एक्सप्रेस वे बन गए ने, 200 किलोमीटर का भी एक्सप्रेस वे हो गए ना, रस्ता हो गए, बंदा सीधा बेफिक्र तुरया चला जाता है, कोई फिक्र नहीं। पर जे किते चौराहा, दोराहा, तिराहा, वो भावें 100 फीट का हो, उत्थे बंदा कन्फ्यूज होता है, उत्थे सुचेत होकर राह चुनना पैंदा है। ते जे गलत राह पै गए, मंजिल भी गवाच जाती है, समा भी व्यर्थ जाता है, ते दुख भी पाउंदा बंदा। साडा सीधा राह है गुरु ग्रंथ साहब जी। ते जिथे किते देहधारी गुरु या कोई मजार, कबरां ते इहो जे धोखा देण वाले लोग नजर आण ना, उत्थे राह बड़ा सुचेत होके चुनना पैंदा है। वो राह गुरु विखाउंदा है, पधरा राह, सीधा राह। पौड़ी सोई सेवो जीड़े दाता बख्शंद, पुकार है सतगुरु वालों कि उस दी सेवा च जुड़ो, ओदा सिमरन करो ऐ जिंदे जो दाता बख्शंद है, जो बख्शिशां करन वाला है। किल विक सब विनाश
होन सिमरत गोबिंद। कहते सिमरन करन नाल वाहिगुरू जी दे किल विखां दा नाश हो जाता है। हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत। ये मार्ग, ये सच्चा राह, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। ये राह कहंदे कौन दसदा है? गुरु दा मंत्र, भाव कि गुरु दा शब्द जपण नाल ये राह मिलदा है। गुरु साधु दसदा है माया स्वाद सब फिक्कियां हर मन पाबंद। जद वाहिगुरू जी दा नाम मनो भाउण लग जावे ना ते फिर होर सारे पदार्थ फिक्के पै जांदे ने। सभे वस्तु कौड़ियां, एक वाहिगुरू जी दा नाम ही मिठा लगन लग जाता है। साहब कहंदे ध्याए नानक परमेश्वर है जिन दिती जिंद। नानक जी कहंदे हर वेले ध्या उस मालक वाहिगुरू जी ने जिन्हें ये जिंद दिती है, तैनू ये शरीर दिता है, सब कुछ दिता है। इस सच्चे राह उत्ते तुरना है। गल कह के समाप्ति करा। एक नौजवान तुरिया चला जा रहा सी राह उत्ते, मंजिल ते पुजना सी। एक बुजुर्ग चौराहे ते बैठा नजर आया। इन्हें जाके नेड़े पुछया कि मैं फलाने नगर जाना, किन्ने टाइम विच पुज जावांगा, कितना समा लगेगा? वो नहीं बोलिया। इन्हें फिर दोबारा उच्ची आवाज च पुछया, फिर उन्हें जवाब नहीं दिता। तीजी बारी पुछया, जद नहीं बोलिया ते सोचा या ते कन्ना तो बोला है, बहरा है, या जवाब देना ही नहीं चाहता। तुर पिया। जब तुरिया ना ते उस बुजुर्ग ने आवाज मार के कहा कि बच्चे तैनू उत्थे तक 2 पहर लगणगे, भाव कि 6 घंटिਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। हैरान हो गया, मुड़ के आया। जब तुहाडे नेड़े खड़े होके पुछया, 3 वारी पुछया, जवाब नहीं दिता। ते हुण जब तुर गया पिछों जवाब दे रहे हो, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹਨੇ ਗੱਲ बड़ी कमाल दी कही। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ सजना जे मैं तेरी तोर ही नहीं वेखी, किन्नी तेजी नाल तुर रिहा ते अंदाजा किस तरह लावां? जे होर हौली तुरेगा ते तैनू 3 पहर भी लग सकदे ने, तेजी नाल तुरेगा ते 1.5 पहर विच भी पुज सकदा है, इस तौर नाल तू 2 पहर विच पुजेगा। बस गल यह है कि असी तुरदे किन्ना कां गुरु दे नाल, किन्ना क गुरु वल तुर रहे हां। महीने च 1 वारी गुरुद्वारे आउंदे हां, हफ्ते च 1 वारी आउंदे हां, या रोज आउंदे हां। ते जे रोज आउंदे हां ते पुज जावांगे गुरु दे नाल उस मंजिल ते। बेअंत होईयां भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। बेअंत बेअंत बधाइयां बंदी छोड़ दिवस दियां, सांझे तौर ते आप सब लई अरदास है। श्री हरि कृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै, घर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। बुलाओ फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।